All right, well, the West Asia war intensifies. We're looking at Indian kitchens that are going cold. Across cities in India, LPG cylinders are running short. The first to feel the heat are, of course, restaurants, dhabas, cloud kitchens, street vendors, and to bear the brunt are people who love eating out, are bachelors or people who rely on these canteens. Now will have to fend for themselves. Stoves are being switched off. Food delivery orders are crashing. Thousands of people are right now waiting for a solution. And the most important part here is that while businesses are losing out, we're looking at gig workers, which we decided to highlight here, who really wait for their small salary to meet ends. They're facing a real tough task at hand because they claim deliveries have fallen short from earlier 30-40 trips to now barely 5 or 10 orders. For many of them, there is no longer this is no longer just an economic problem, it's about survival altogether. The gig workers platform, the union there, says that many workers are now struggling to even feed their own families because people are not ordering, restaurants are not serving. Basically, restaurants are not cooking. On the ground, the distress is very visible. In Noida, women are lining up outside gas agencies before sunrise. In Madhya Pradesh, fast food outlets are switching to coal and induction stoves. In Lucknow, a woman says that she had no gas for 5 days. She cannot even heat milk for her baby. In Jaipur, hotels have put up notices there saying no tawa roti, no LPG cylinders. Many kitchens are now using coal furnaces. In Mumbai, the Restaurant Association says 35 to 40% of eateries are either shutting down or cutting their menu to size. In Thane, more than 800 hotels and restaurants are starting to already cut down menus and also shutting down completely because there's no gas. In Delhi, many households are now rushing to buy induction cooktops. People are afraid cylinders may not arrive. In rural areas, we hear the waiting period for LPG cylinders has now been extended to 45 days. So for the next 45 days, you won't be able to get your hands on a cylinder if you're in a rural area. So panic indeed is spreading. The crisis is hitting industry hard. In Bengaluru, the Yelahanka gas power plant has shut after GAIL stopped gas supply completely. The city could also face power disruptions if demand rises. Now, there is another worry. Even where cylinders are available, prices are also rising. That could make food costlier across restaurants, cloud kitchens and delivery platforms. The government says that there is no need to panic. Prime Minister Modi says that India is prepared and ministers have been asked to counter rumors. But the opposition says the government is downplaying a serious crisis. In fact, there was a whole protest led by Rahul Gandhi at the parliament today, outside the parliament. They were protesting the LPG shortage. So, well, we're looking at a crisis. We are staring at one. The government says don't panic. Opposition says the government is downplaying. And the reality on the ground is for us to see. What's really happening? Is India really facing this LPG shortage? Or is this panic driven? What's happening with our gig workers? One thing is very clear, restaurants are slowing down, food deliveries are collapsing, millions of gig workers are suddenly staring at an uncertain tomorrow. They have barely orders coming in, so they're not making their cut or commission. A war that's happening kilometers away is now reaching Indian kitchens and raising a frightening question, whatever happens when the country's stoves stop burning. I'm going to take you through what exactly the government's version is with this LPG crisis. Let's hear it. India sources crude from 40 countries as against 27 in 2006 and 7. This structural diversification, built through sustained policy over successive years, has given us options that other nations find themselves without. Refineries are operating at high capacity utilization. In several cases, they are exceeding 100%. There is no shortage of petrol, diesel, kerosene, ATF or fuel. All right, let's quickly bring in our guests on board. We have Nirmal Gorana, National Coordinator, Gig Workers Union, and also Chandra Prakash, President, All India LPG Distributors Federation. Also, Adit is still with us. I'd start with Nirmal Gorana ji. क्या हो रहा है? Gig workers बता रहे हैं कि deliveries जो 50 दिन का हो रहा था, अब तो 5-6 ही हो रहा है. कितना घाटा हुआ है आपके यूनियन में, आपके एसोसिएशन? You're on mute, sir. Please unmute yourself.
अभी जिस तरीके से पूरे देश में जो नज़ारा सामने आ रहा है, और जहां पर सरकारें कह रही हैं कि अभी पैनिक होने की कंडीशन नहीं है, परंतु वो पैनिक होने की कंडीशन है तो शुरू हो चुकी है। और ये जो तमाम गिग वर्कर्स हैं जो कि अपना डिलीवरी करते थे और अपनी सर्विस दे रहे थे, परंतु वो अभी उनकी जो है उनकी सर्विस के अंदर उनका जो फ्रिक्वेंसी है वो घटता हुआ नजर आ रहा है। और हाल ही में वो सारी स्थितियां पैदा होने वाली हैं जिस स्थिति में हम कहते हैं कि वो बेरोजगारी का मुख देखेंगे। और अभी पूरे देश में जिस प्रकार हम कहते हैं कि लॉकडाउन के टाइम में सरकार कहती रही कि कहीं कोई माइग्रेंट वर्कर को परेशानी नहीं है, परंतु अचानक से जो प्रवासी मजदूरों का, माइग्रेंट वर्कर का इशू पूरे देश में आया, सरकार भी उस समय इनको कंट्रोल नहीं कर पाई, न इनको सर्विसेज दे पाई, और अंत में जाके कोर्ट को फैसला देना पड़ा और कहीं न कहीं कोर्ट को डायरेक्शन देना पड़ा। फिर से वो स्थितियां पैदा न हो जाए, सरकार को और इस देश को इस लॉकडाउन से सीखना चाहिए कि अभी हाल में जो गिग वर्कर्स हैं, इनकी अचानक से इनके सर्विस में कटौती होना या कटाई होना, ये इंडिकेशन साफ साफ दे रहा है कि आने वाला समय जो है बड़ा ही दुखदायक होने वाला है, और सरकार इसके ऊपर जल्दी से जल्दी संज्ञान ले। जी, कितना कट मिलता है? गिग वर्कर्स कैसे कमाते हैं? आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक डिलीवरी में आपको कितना मिलता है? देखिए, गिग वर्कर जो काम करता है इस पे विशेष रूप से अभी जो प्रभावित होने जा रहे हैं स्विगी, जोमेटो और ये जो ट्रांसपोर्ट वर्कर है वो सारे, ये जो डिलीवरी बॉय है, ये डिलीवरी बॉय काम करने के लिए जाते हैं। तो आपने पिछले 25 दिसंबर की स्ट्राइक से पूरे देश में एक संदेश गया कि कैसे 4 रुपए पर किलोमीटर पे वर्कर काम कर रहा है, गिग वर्कर काम कर रहा है। पर अभी स्थितियां हो गई जहां उसको फूड के पैकेट नहीं मिल रहे हैं, जहां वो पूरे दिन में वो इंसेंटिव के लालच में, जहां पर वो 30-30 ऑर्डर, 40-40 ऑर्डर कर पाता है, आज वो ऑर्डर खिसक कर उसके मात्र 10-15 ऑर्डर पर आकर वो अटक गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो ऑर्डर घट रहे हैं, वो सर्विस नहीं दे पा रहा है। ये साफ इंडिकेट कर रहा है कि गैस के सिलेंडर की वजह से, ईंधन की वजह से जो है ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि होटल रेस्टोरेंट उनको पार्सल दे ही नहीं पा रहे। वहां पर जो गैस की कटौती है और वहां पर किल्लत होने की वजह से उनको जो है ये सारा सर्विस नहीं मिल पा रहा है। जब इनको नहीं पैकेट मिलेगा तो ये आम जनता तक किस प्रकार अपनी सर्विस दे पाएंगे? ये तो पूरा मीडिया ही बता रहा है। आपके मीडिया के माध्यम से हम लोग सरकार से भी यह कहना चाह रहे हैं, क्योंकि गिग एंड प्लेटफॉर्म सर्विस वर्कर यूनियन की तरफ से हमने श्रम मंत्री, माननीय श्रम मंत्री को हमने ये निवेदन किया है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये जो गैस सिलेंडर का जो किल्लत पूरे देश में आया है, ये कहीं डिजास्टर का रूप न ले ले। इसलिए सरकार को पहले ही संज्ञान लेते हुए, इसके ऊपर त्वरित कार्रवाई करते हुए, तत्काल ही सबसे पहले तो कंपनसेशन की घोषणा सरकार को करनी चाहिए, हाँ। क्योंकि ये गिग वर्कर हैं जिनको सरकार मजदूर, वर्कर्स, लेबर राइट्स का जो है इनको राइट्स नहीं दिया गया, और इनको वर्कर ही नहीं मानती है। जब वर्कर नहीं मानती है और अचानक अगर इनको काम से हाथ धोना पड़ेगा, जॉब खो देनी पड़ेगी, जब इनको बेरोजगारी का मुंह देखना पड़ेगा, कि किसके पास जाएंगे? कंस्ट्रक्शन वर्कर को हाल ही में हीट वेव के टाइम में कोर्ट के डायरेक्शन पर जो है कंपनसेशन देने की बात कही गई। हम अभी सरकार से निवेदन कर रहे हैं, कंपनियों के साथ में बात करें और तत्काल ही सरकार इस बात की घोषणा करे कि कम से कम 10,000 रुपए का तो कंपनसेशन महीने के हिसाब से घोषित करे, जी। ताकि वर्कर पैनिक ना हो। खाली कह देने से सरकार के द्वारा कि पैनिक मत होइए, इससे सवाल पैदा नहीं होता है। अभी आईआरसीटी को देख लीजिए, वहां खाना बंद हो गया। हमारे देश की कोर्ट की अदालत के अंदर देख लीजिए, वहां पर कैंटीन में भी अभी खाना का पूरा प्रोसेस चेंज हो गया, बंद हो गया। तो फिर किस प्रकार से हमारा जो गिग वर्कर है वो एक वनरेबल सेक्शन है, और इसमें सबसे ज्यादा जो नंबर है वो माइग्रेंट वर्कर, प्रवासी मजदूरों का है। इसमें केवल बेरोजगारी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, बल्कि उनको अपने घर के अंदर, क्योंकि वो प्रवासी है, वो जिस प्रकार से खाना बनाते हैं, उनको अपने स्वयं के खाने के लिए गैस के सिलेंडर, जहां पर वो भरवाने के लिए गैस का सिलेंडर जाते हैं, जहाँ 250 रुपए कह रहे हैं, उसका दाम बढ़ के कितना हो गया? एक सिलेंडर जो है 5-5 हजार रुपए में मार्केट में मिल रहा है। वो लाके अपना खुद का खाना नहीं बना पाएगा, वो भला समाज को कैसे खाना परोसेगा? तो इस पर जो है सरकार को तत्काल से ठोस निर्णय लेने, और वर्कर के प्रति संवेदनशीलता, एक सेंसिटिविटी रखते हुए, और उनको आगे होकर सरकार को जो है गिग कुछ, वर्कर्स के लिए हाँ, घोषणा करनी चाहिए। बिल्कुल। इनफैक्ट
Gig workers, though, without any social security, they work, and that's the struggle. It's not a formal job where they have formal job security or protection. So, in a crisis like this, they take the first hit. Chandra Prakash, your take on LPG supplies. Now, because of restaurants not functioning, it's inevitably impacting gig workers. I'm not getting into other areas. Gig workers have raised this issue and it's impacting their income. When do you think this crisis might get resolved, or is there any word that you have from the union government or any members to try and fix this supply chain? नमस्कार। देखिए, हम डिस्ट्रीब्यूटर्स की रेस्टोरेंट और होटल में भी ये ईटरी हाउस है, इनका बिजनेस सफर हुआ। हमारी पूरी सिंपथी इनके साथ है कि अचानक से ये ऐसी सिचुएशन पैदा हुई कि इनकी एलपीजी सप्लाई रोकनी पड़ी, क्योंकि सरकार का ऑयल कंपनीज का एक उन्होंने प्रायोरिटी सेक्शन डिसाइड किया कि सबसे पहले घरेलू गैस घरों के अंदर गैस की सप्लाई की पूर्ति की जाएगी, और अगर कॉमर्शियल में भी देते तो हो सकता है उनकी सप्लाई उनको पूरी सप्लाई ना दे पाते। दूसरी चीज मैं बताता हूं जो इन्होंने भी कहा, मिस्टर निर्मल ने, कि 5,000 का सिलेंडर मिल रहा है किलो के 250 रुपये किलो। इनको मैं सबके आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि डिस्ट्रीब्यूटर जो हैं या तेल कंपनियां जो हैं वो 14.2 kg का सिलेंडर डिलीवर करते हैं या 19 kg का करते हैं, वो किलो में कोई सप्लाई नहीं करता। आपके चैनल से भी मैं आपको भी बताना चाहता हूँ, आपके चैनल ने भी 7:30 बजे नोएडा की एक न्यूज़ दिखाई थी आज शाम को ही। वो न्यूज़ बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटर से या डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क से ताल्लुक ही नहीं रखती। हाँ। ये जो कुछ लोग अनऑथराइज लोग हैं और किसी तरह से इनको अपना घर का सिलेंडर लाके ये अनऑथराइज सिलेंडर में, छोटे सिलेंडर में जो गरीब तबके के लोग इस्तेमाल करते हैं, उसमें आधा किलो 1-1 किलो गैस भर के बेचते हैं। तो उसका ये भ्रामक न्यूज़ नहीं दिखानी चाहिए। तो वो आप डिस्ट्रीब्यूटर का वो दिखा के और फिर ऐसा दिखा दिया गया ये 300 रुपये किलो मिल रही है, 250 रुपये किलो मिल रही है। ये सारी भ्रामक जो न्यूज़ हैं, जिससे भी जो रजिस्टर्ड कस्टमर है, जो महिलाएं हैं या जो बेचारे कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो पैनिक होके और वो अपना सिलेंडर उठा के लेके जाते हैं। मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूँ, कोई डिस्ट्रीब्यूटर कोई भी अपना घर का सिलेंडर उठा के अगर शोरूम पे लाता है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर उसको सप्लाई देने की हिमाकत भी नहीं करेगा, ना उस कंडीशन में है कि उसको शोरूम पे सिलेंडर दे दे या गोदाम से दे दे, क्योंकि एक प्रोसीजर है। पहले सिलेंडर की रिफिल बुकिंग होएगी सिस्टम में, फिर जब उसका नंबर आएगा, जब उसकी टर्न आएगी, तब जाके उसका रिफिल वाउचर कटेगा। रिफिल वाउचर कट के गोदाम पे जाएगा, गोदाम से सिलेंडर होम डिलीवरी के लिए जाएगा। तो ये जो सिलेंडर की लाइन दिखा रहे हैं, ये भ्रामक तरीके से, भाई आपने बुकिंग नहीं कराई, आपकी बुकिंग नहीं हुई है, आप सिलेंडर लेके वहां चले गए तो शोरूम पे कर रहे हैं। लाइन ऑर्डर की प्रॉब्लम है, 10-10, 12-12, 14 साल के बच्चों के सर पे सिलेंडर लेके घूम रहे हैं। तो ये जो तस्वीर है, कृपा दिखानी बंद करिए। ये इनका एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये तो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से ये लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ कि कोई अपना सिलेंडर लेके ना जाए। और इन्हीं की वजह से देखिए, जिस आदमी को, जिस कस्टमर को आज सिलेंडर की जरूरत नहीं है, वो भी पैनिकी में होके बुकिंग ले जा रहा है। अब अभी 2 दिन से ऑयल कंपनी का जो सॉफ्टवेयर है बुकिंग करने का, वो क्रैश हो गया है, क्योंकि उसमें 8 से 10 गुना ज्यादा लोड बुकिंग का लोगों ने डाल दिया है। और वो चलने के मतलब वो ऐसा हो गया कि लोग लाइन में खड़े हैं, बुकिंग ही नहीं कर पा रहे। ऑयल कंपनी ने थोड़ा रिलैक्सेशन दिया है कि भाई मैनुअल उनका नोट कर लो, रजिस्टर कर लो, और जब सॉफ्टवेयर चालू होगा तो उनकी बुकिंग हो जाएगी। लेकिन उपभोक्ता को जाने की जरूरत ही नहीं। iWires की बुकिंग है, कई मोड है बुकिंग करने के, वो अपने घर से बुकिंग कर सकते हैं। और अगर कोई पर्सनली आके भी बुकिंग करना चाहता है तो बुकिंग करके चला जाए। अगर सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा तो मैनुअली बुकिंग, अपना कंज्यूमर नंबर, अपना मोबाइल नंबर, अपना नाम वहाँ पे रजिस्टर में नोट कर ले और वो चला जाए। जब उसकी टर्न आएगी उसको होम डिलीवरी हो जाएगी। अब मैं जो बात बता रहा हूँ रेस्टोरेंट की, अभी जो सरकार ने 3 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की, तीनों ऑयल कंपनी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एलपीजी की कमेटी बनाई है। और आज थोड़ा पेट्रोलियम मंत्रालय ने भी इंडिकेशन दी है कि उनके बारे में भी जल्दी, मैं ये तो नहीं कह सकता क्योंकि अभी पूरी मैंने रिपोर्ट पढ़ी या पूरी रिकमेंडेशन आई नहीं है, लेकिन वो थोड़ा बहुत पॉजिटिवली
उनके लिए कंसीडर कर रहे हैं। 100% तो शायद अभी पॉसिबल नहीं है जब तक के हालात नॉर्मल नहीं होते। अभी आपके चैनलों से या मीडिया से सब पता लगा है कि आज भी वो हॉर्मुज का रास्ता कुछ हमारे भारत के लिए शिपमेंट वहां से निकली है, तो वो भी एक अच्छा साइन है कि कुछ ना कुछ उससे जो क्रूड आ रहा है उससे थोड़ा एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। और ठीक है। देखिए, मैं बड़ा आपको भी क्लियर, मतलब मैं आपको बड़ा क्लियर आई वांट टू टेल यू दैट फर्स्ट ऑफ थिंग till Monday noon there was no panic. When the social media, small channels, triggers, they started showing that there is a huge shortage of LPG. Government of India, Ministry of Petroleum, oil companies, distributor network, we are telling people that for domestic user there is no shortage. Or No, in that coming we know. days- We know that domestic users no shortage. We've also reported that. What about restaurants and the larger impact? रेस्टोरेंट ये अचानक एकदम बंद हुआ है। हाँ, तो ये और मीडिया की वजह से कम, रियलिटी की वजह से ज्यादा हुआ है ना। अगर रेस्टोरेंट खाली कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, पका नहीं रहे, बोर्ड्स लगा रहे हैं बाहर के, कुछ नहीं मिलेगा, तो ये पैनिक मीडिया थोड़ी ना क्रिएट कर रही है, ये तो हो रहा है ना ग्राउंड में। देखिए, दो चीजें, चंद्र एक प्रकाश जी, डोमेस्टिक आप सेक्टर जो है। बात कर रहे हैं एक इस मिनट निर्मल जी, हिंदुस्तान एक के मिनट, अंदर एक नहीं, आपने एक बात निर्मल कर लिया, जी, इनको भी आप बात बोलने करने दीजिए। दीजिए मुझे। एक ही मिनट है मेरा। हाँ, बोलिए। निर्मल जी, एक डोमेस्टिक सेक्टर है, एक आपका कॉमर्शियल सेक्टर है। मैं पहले ही कह रहा हूं कि कॉमर्शियल सेक्टर को दिक्कत आई है, मैं बिल्कुल इससे सहमत हूं, और सबकी कोशिश है निर्मल जी कि है, आप लोगों को निर्मल जी है, ये तो कमर्शियल सेक्टर से टाइड है। तो निर्मल जी आप बताइए क्या हो रहा है। देखिए, दोनों ही स्थितियों में हिंदुस्तान का जो 50 करोड़ मजदूर है और उसमें एक बहुत बड़ा भाग है जो प्रवासी मजदूर का है। आज ये जो सारे लोग लाइन में लगा के खड़े, ये मीडिया क्या दिखा रही है, ये तो और नेचुरल हो ही रहा है। आप ही देखिए कि लोग सिलेंडर कहाँ से लेके आ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये बाहर से लेके, ये सिलेंडर भी तो कहीं ना कहीं किसी कंपनी ने बनाए होंगे। आज हिंदुस्तान में जितने लोग ना, किसी चाहे वो प्राइवेट या ब्लैक में भी भरवा रहा है, क्या उस समय सरकार की आंखें फूट गई थी? सरकार नहीं देख रही थी कि कितना प्राइवेट तरीके से ये गैस जा रहा है? आज ये लाइन में खड़े हैं तो प्राइवेट नजर आ रहा है। और दूसरी बात, कमर्शियल की आप बात कर रहे हैं, कमर्शियल की पूरे अच्छे तरीके से सरकार भले ही कह रही है कि वो पैनिक न हो, पर जो लॉकडाउन के टाइम में भी इसी प्रकार से सारी बातें की गई थी। पर जाके दर्द पूछे उन तमाम वर्कर का जिनके पास में अभी पेट्रोल कहें चाहे गैस कहें भराने के लिए 5 रुपए नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने आज सर्विस के लिए जाना है, जब उनको ऑर्डर ही नहीं आया तो उनकी ऑर्डर पे कमाई होती है, उनको मंथली वेजेस नहीं मिलते, उनको कहीं वर्कर की तरह तनख्वाहें नहीं देखिए, मिलती है। देखिए गिग आज जो वर्कर की वनरेबल मैं सेक्शन बिल्कुल है, बिल्कुल आज जो आपकी मानता मुसीबत हूँ। जीने वाला मजदूर है, उसकी Fortunately, हालत that's all I बहुत have time vulnerable है। for. बहुत धन्यवाद निर्मल और चंद्र प्रकाश जी. We only ask for the government to help such sectors that are bleeding, that is the restaurant business and the gig workers. If there's any way that some subsidies can be given, some support can be given, that would be great, because the gig workers especially, they rely on these deliveries for their वो household सरकार का needs इशू है, जरूर to कुछ ना meet कुछ ends. इन गिग तो वर्कर के लिए करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल. Thank you very much. I appreciate both of you joining us on that.